then profitableness of God's presence with us. इधर हम देखेंगे तो जोसेफ एक फॉरेन कंट्री में है, उनका कोई रिश्तेदार उनके साथ नहीं है, उस देश में वो अकेले हैं। एक आदमी का घर के साथ जोड़ा हुआ काम में लगे हुए हैं, इतना बड़ा नौकरी में नहीं है, छोटा नौकरी है, अन्य देश में है, अन्य घर में है, फिर भी प्रभु उनके साथ था। और दूसरा जगह में हमने जो देखा वो जेल खाने में, प्रिजन में, इधर हम पढ़ते हैं the Lord was with him. So first the possibility of God's presence. ईश्वर ऐसा एक ही व्यक्ति है, सर्वव्यापी है। ईश्वर को ईश्वर बनाने वाला 5 गुणों में से एक है, सर्वव्यापी है। God is eternal, God is omnipotent, God is omniscient, God is omnipresent, then God is immutable. These are the 5 qualities, essential qualities. ये 5 गुणों के कारण ईश्वर ईश्वर है। ये 5 गुणों में से एक भी दूसरे कोई व्यक्ति में, कोई मनुष्यों में, कोई प्राणी में देख नहीं सकते। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारा ईश्वर एक सर्वव्यापी है। ऐसा हवा सब जगह में है, या हम प्राणियों को श्वासोच्छ्वास होना है, जीना है, तो हवा होना है। और सूर्य का प्रकाश हर जगह में पहुंचता है, उससे काफी अधिक, ज्यादा अधिक ईश्वर हर जगह में है। हर एक व्यक्ति के साथ ईश्वर कांटेक्ट में रह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। हमारे यीशु मसीह इस दुनिया से जाने से पहले मत्ती 28 का 20वां कलम में अपने शिष्यों को इतना बड़ा जिम्मेदारी देने के बाद उनको बोला, देखो मैं सदाकाल तेरे साथ हूं। Behold, I am with you always. That is the secret of the success of the missionary work, the success of our Christian life. God is with us. God can be with us. This is something God alone is able to do. हम सबके साथ नहीं हो सकता है। हम कई बातों में सीमित हैं। ईश्वर को ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर हर जगह में है और हर व्यक्ति के साथ ईश्वर हो सकता है। So because he is God, so Jesus is with us. Secondly, the promise. बाइबल में ऐसा बहुत प्रॉमिस है, ये सब पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। योशुआ 1:5 ईश्वर बोलता है, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा मैं तुम्हारे साथ भी होगा। As I was with Moses, I'll be with you. 40 years Joshua has seen how God was with Moses. ईश्वर मूसा को बुलाते समय में निर्गमन 3 में बोला, तुम आओ, इस्राएल को छुड़ाने का है।
मैं तुम्हारे संग रहूंगा. I'll be with you. So after 40 years, God is telling Joshua, a man who has seen how God was present with his servant, saying that, as I was with Moses, I'll be with you. So the promise of God's presence. There are many verses which I don't want to read now. यशायाह 43 का 1 से हम पढ़ेंगे तो, तुम पानी से चलते जाते समय में मैं तुम्हारे संग रहूंगा. ईश्वर हमारे अच्छे बुरे समय में हमारे साथ रहता है. Whether the time is good or bad, God is with us. So that is one thing we all testified. God is with us. And we have to experience this. Because God has promised. And God's promises are true. Third thing, the power of God's presence. तो इधर जोसेफ के बारे में हम पढ़ते हैं. उनका जीवन में पाप से बचने का और प्रिजन से पैलेस में पहुंचने का पीछे ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर का हाजिरी का. He knew that God is with him. It was a very difficult, tough time, but God was with him. The power of God's presence. Shadrach, Meshach, Abednego. The power of God's presence. They came out of the furnace without being burned because the Lord was with him. So we can understand the power of God's presence, how God delivers his people. यदि यीशु मसीह वो एमोस में जाते शिष्यों के साथ यदि उनके साथ न हो लिया, उनके साथ चलना शुरू नहीं किया, हम सोच सकते हैं उनका क्या होता है. What would have happened to them? But the presence of the Lord continuously walking with them, probably all those long distance, teaching them, correcting them, telling them, finally showing himself, revealing himself to them. The Lord's presence, the difficult situations of life, the presence of the Lord can remove all the fears, all the burdens of life. Finally, one more verse, the profitableness. What profit we have by the presence of God? Psalm 23:4, we read, though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil because you are with me. हम दुनिया में भय के बिना जीने के लिए प्रभु का हाजिरी हमको चाहिए. हमें भय देने वाला बहुत बातें दुनिया में. अरे कभी कभी जो समाचार सब हम सुनते हैं हमारे अंदर बहुत भय डाल सकता है. कुछ लोग कुछ मैसेज भेजते हैं, कभी कभी वो सही भी नहीं होगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा.
वो हमारे अंदर बहुत भय डाल सकता है। ये भय कब चले जाएंगे? जब हम प्रभु को हमारे साथ, उनका हाजिरी को हम जब महसूस करते हैं, तब हो सकता है। आखिरी में मैं कई बार बोला हुआ एक घटना बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। इधर है ना, पालनपुर हिम्मत नगर एरिया में हम जब काम करते थे, बहुत विरोध हो रहा था। हर जगह में लोग इतना विरोध कर रहा था, कुछ बोलने को नहीं देता था, गाना गाने को नहीं देता था, और बहुत सवालें पूछता था, ऐसा था। फिर आखिरी में उस दिन का काम हम बंद करके, जो खाना हमारे पास था वो खाना खाने के लिए एक झाड़ के नीचे बैठ गया, खाना खा रहा था। खाना होने के बाद वो जो लीडर था उस समय का, he will be some 25 years older than me, he's still alive. He just told me, यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेजते समय में मत्ती का सुवार्ता 10वां अध्याय में उनको बोला, I am sending you as sheep among the wolves. भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में मैं तुमको भेजता हूं। उसके बाद ये प्रभु का दास मुझको बताया, भेड़ियों को देखेगा तो कौन सा भेड़ डरेगा नहीं। फिर इसने बोला है, हमारे साथ जो है ये कौन है? यह यहूदा गोत्र का सिंह है। He is the lion from the tribe of Judah. If he is seen, he is with us. Which wolf will be able to attack? और मैं बताना चाहता हूं, ये मेरे लिए उस समय से लेके आज तक ये बहुत बड़ा एक आई ओपनर, द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट विद अस, द पावर ऑफ क्राइस्ट, द ग्रेटनेस ऑफ क्राइस्ट, यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट। जो हमारे साथ है वो कितना बड़ा है, सामर्थ्य है। हम उनके साथ चलता है, हम अकेले इधर नहीं है। इसलिए आज ये संदेश समाप्त करते समय में प्रभु हमारे साथ होने से क्या फायदा है? भय के बिना दुनिया में जी सकते। दूसरा बात, उधर जोसेफ के साथ हमने देखा, वो सक्सेसफुल हो गया। प्रभु का हाजिरी हमें विजयी बनाता है। यदि प्रभु का हाजिरी को उस दिन बराबर महसूस नहीं किया, दूसरा कुछ परिणाम निकलता था। इसलिए इस नया साल में द प्रेजेंस ऑफ गॉड विथ अस, द पॉसिबिलिटी, द प्रॉमिस, द पावर, द प्रॉफिटेबलनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। May the Lord bless these words. We will pray. हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद